you have to decide at this point कि आपको 3 साल बाद आपको कितने का चेक चाहिए. Simple enough. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं, और अगर है तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी पैकेज एंड व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर, अगर आप थोड़ा सा वो बता सकें. Yes, totally. I'll tell you, fee structure per year same है, and 1 year का fee it is 3 lakh. I was getting both of these degrees in the 3 years का tenure. If I have to do these degrees separately, then I would require 4 years का tenure. And what this course gave me specially was that it gives you MBA skills, managemental skills, plus the technical knowledge on the M-Pharm side. So I found that this course was perfect and right for me. That's why I gone for it. Hello everybody and welcome back to Healthcare Tips by Payam Bora. And आज द मोस्ट अवेटेड वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसका हर किसी को वेट था कि आखिर सर NMIMS में M-Pharm प्लस MBA का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कितने साल का है, क्या स्कोप है, कैसे एंटर करें. All your questions will be solved today because I have Anurag Rane who has himself enrolled in the course for M-Pharm plus MBA. So first of all, thank you so much Anurag for accepting our invitation for this discussion. Yeah. Hello, Payam. And yeah, thank you for inviting me for such a great talk. Okay. So, Anurag, my first question to you, that why did you choose M-Pharm plus MBA? Why did you choose this program? Why not just Masters? Why not just MBA? Why an integration of both of these programs? Yeah. So, basically, after B-Pharm, हर किसी के सामने दो options होते हैं. या M-Pharm करना है या management type MBA course करना है. Same, I was confused. M-Pharm चाहे MBA चाहे क्या करे. So I started giving exams, even the MBA के लिए and M-Pharm के लिए, like our GPAT and all everything. And then I came to know that there is a course which has both of these degrees, like M-Pharm plus MBA. And the plus point was that I was getting both of these degrees in the 3 years ka tenure. If I have to do these degrees separately, then I would require 4 years ka tenure. And what this course gave me specially was that it gives you MBA skills, managemental skills, plus the technical knowledge on the M-Pharm side. So I found that this course was perfect and right for me. That's why I gone for this. So it's like a package of research and, marketing skills in one course. Bilkul. So, Anurag, my next question to you. Why did you choose NMIMS? Maybe there would be some other colleges also that would provide. Why just NMIMS? So when I was looking at colleges, obviously I wanted to tackle the topmost colleges in the India, obviously. So दिल्ली में देखा था डिप्सर यूनिवर्सिटी करके था, पुणे में पुम्बा करके था, then मुंबई का देखा तो टॉप में NMIMS का ही नाम था. Obviously you know brand value होता है प्लेसमेंट्स के टाइम पे, सबको प्लेसमेंट चाहिए. So in Hassel batch, I even gave exams for other colleges and actually I got in a different college. नाम नहीं लूंगा. Okay, definitely. I cracked this NMIMS ka exam and then I saw that ranking wise it is higher. So NMIMS it is. So since you mentioned about the examinations, thoda sa uske bare mein let's have a discussion. What is the exam name? What is the exam pattern? How many rounds? Can you brief us, our audience, about the exam? Definitely. So who are the people who are interested in knowing about NMIMS? So NMIMS ka ek normal MBA course bhi aata hai, which is of 2 years, pharma MBA course. So for this, you need to crack their NMET ka exam, which is done in October or November ka time pe. Okay. Early on. So you need to plan it very early. Other than that, when you think about this course, which is M-Pharm plus MBA, तो इसका एक separate exam होता है. It's no specific name for this. It's M-Pharm MBA का exam. And वहाँ पे it's totally GPAT का portion and GPAT के level जितना ही tough होता है वो exam. So on the basis of that, there is ranking and the higher you rank, the first priority you get to choose your college. Like there are 2 campuses for NMIMS. One is in Mumbai, Vile Parle, and one is in Shirpur. Acha. So all the other students who gave the exam with me, we both, according to our ranks, got the option to select the Mumbai campus or the Shirpur campus, and that's how the placements were done. So based on that exam. So, like, how is the curriculum structured? Because it's a 2 course का mixture. So, can you tell like कि first year सिर्फ MBA होता है, second year सिर्फ masters, या ऐसा mix थोड़ा सा curriculum का अगर आप बता सके? Definitely. So first 2 years M-Pharm तो पूरा होता है. M-Pharm 2 साल का है, वो आपका पूरा होगा. और उसके साथ साथ पहले के 2 years में थोड़ा MBA के courses would be there, MBA के subjects. So मोटा मोटी देखे तो now I am in my second semester and I am having 13 subjects at one time. And third year पूरा MBA होता है. So डरने की जरूरत नहीं है, subjects बड़े लगते हैं, but then it's
वेरी मच मैनेजेबल इफ यू गिव इट योर ऑल, बट ये अब है कि then आपको right, please टाइम continue, देना please पड़ता है। continue. Time देना पड़ता है. And is it difficult to balance pharma and management because both require little different skills, right? So how is it? Okay, how do you balance both of the sides of the coin? यस, सो डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, बट चैलेंजिंग यस ऑब्वियसली, बिकॉज आपको दोनों चीजें मैनेज करना है। आपको अपना रिसर्च साइड और फार्मा ये बैलेंस करना है, एट द सेम टाइम मैनेजमेंटल स्किल्स ये सब डेवलप करने हैं। एंड आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, लाइक हाउ डू यू मैनेज योर थिंग्स, लाइक द कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 AM एंड द लेक्चर्स एंड एट 5:30 एवरी डे, जस्ट Oh, अल्टरनेट सैटरडेज आर ऑफ एंड द संडेज आर ऑफ। सो अदर देन दैट कुछ कुछ बैंक हॉलीडेज भी नहीं मिलती छुट्टी। But so until and काफी. unless you want to make your career and you are focused about it, then you're gonna give it your all, obviously. So अनुराग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये तो आपने बात करी थियरी की, व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स, वो कैसे मैनेज होते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं मास्टर्स का प्रोजेक्ट और ऊपर से प्रेजेंटेशंस ऑफ एमबीए, क्या हो जाता है मैनेज? क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 2 सेम हो गए, सो आपका Definitely. कैसा एक्सपीरियंस रहा है? So टफ तो है, मैं कहूंगा टफ तो है, बिकॉज अभी हमें पर सेम 2 रिव्यू आर्टिकल देने पड़ते हैं, और वो आपका प्रोजेक्ट तो हो ही गया जो आर्टिकल मेजर होता है। सो दैट यू हैव टू, लाइक एट द एंड ऑफ द डे यू डू नॉट हैव दैट मच फ्री टाइम कि भाई हर रोज घूम लिए। हाँ, हफ्ते में 2-3 दिन घूम ले, पर बाकी 2 दिन इस पे भी फोकस करना है। थोड़ा कॉलेज में टाइम मिल गया तो वहां पे फोकस करे। पीपीटीज का तो आपको डेवलप हो जाता है जैसे आप करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एमबीए साइड पे इंक्लाइंड है तो आप में इन जनरल वो आ ही जाता है कि आप पीपीटीज हाँ, बनाने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली. रिसर्च के लिए बस थोड़ा फोकस होकर काम करना पड़ता है, बट देन इट्स 1 ईयर का। सेकंड ईयर में रिसर्च पे ज्यादा फोकस रहता है। बाकी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर आप थर्ड ईयर तो पूरा एमबीए ही है, फर्स्ट ईयर आप एमबीए पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, सेकंड ईयर आप रिसर्च पे दे दो, तो ऐसे आपको 3 इयर्स में मैनेज करके हो जाता है। सो यू कैन डिवाइड लाइक ईयर्स आपका, एंड आपका गोल्स अचीव हो जाएंगे. अब एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग, how is a student's life at NMIMS? If I tell you to describe, जैसे आपने स्केड्यूल तो बता दिया 8, how is overall a student's life, extracurricular activities, peers, events, थोड़ा सा उस बारे में बताया. What is the जी student's बिल्कुल। life? सो एक्स्ट्रा करिकुलर इज टू गुड, एक्चुअली टू गुड, बिकॉज अगर आप क्लब्स की भी बात करेंगे, यहाँ पे इतने सारे क्लब्स है, कुछ तो क्लब्स के अंदर क्लब्स है। तो आप ये डांस और ये सब तो एक साइड पे छोड़िए, वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। अदर देन दैट ये सोशल वर्क जैसे क्षमता वगैरह क्लब हो गया, फिर और आयु वो तो डांस वगैरह के लिए हो गया, बी ज्ञान करके फॉर बिजनेस टॉक्स एंड ऑल, तो ऐसे सब क्लब्स में आप जा सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। प्लस एक फायदा होता है कि ऑल दिस कम्स अंडर द एसवीकेएम्स फैमिली, सो उसके अंदर और भी कॉलेजेस आते हैं, जैसे डीजे संघ भी आ गया, मिठी बाय हो गया, एंड मेनी सच कॉलेजेस आर इन इट। सो वो कॉलेजेस के इवेंट्स भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो आपको Great. बहुत स्कोप है सब अटेंड करने का। लवली. सो आपका को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत डेवलप हो जाता है. एब्सोल्युटली. यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो देयर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रिसर्च में तो ठीक है आपको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं पड़ती, बट व्हेन यू आर डूइंग एमबीए एंड इंटर्नशिप इज लॉट ऑफ वैल्यू. सो क्या आपको इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलता है टू सिट इन द कंपनीज? डू यू गेट अ चांस while you are in these 3 years of your course? बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ योर सेकंड ईयर, एमआईपी लगता है, प्लेसमेंट्स लगते हैं उसके इंटर्नशिप्स के, एंड इट्स कंपलसरी, इट्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स। So Okay. and that those are like paid internships, so they give you actual value and they matter on your CV क्योंकि ये 3 महीने के लिए रहते हैं। Okay. Yeah, so Now, they हाँ so they are very important. Next question, Anurag. जॉब रोल्स, मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो 2 कोर्स कर लिए, अब कौन से जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल्स, कौन से कंपनीज में हम एलिजिबल है, तो थोड़ा अगर आप बता सके दैट वेयर ऑल यू कैन सिट फॉर द प्लेसमेंट, मतलब कौन सी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल है, क्या क्या जॉब रोल्स? बिल्कुल पैम, इसमें मैं थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि ये मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जब मैं एनएमएमएस देख रहा था। अच्छा. तो हाँ, सो मेजरली आप जो एमबीए का सोच के जाता है, क्योंकि एमबीए इतना ज्यादा प्राइस अगर आप दे रहे हैं, थोड़ा फीस उतना दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपको उतने रिटर्न भी है। तो करेक्ट. कॉलेज आपको एमबीए के सारे प्लेसमेंट्स लाके देता है। एमबीए के साइड के जॉब्स, मैनेजरियल, उसमें सेल्स भी इंक्लूड हुआ, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हुआ, उसमें प्रोडक्ट मैनेजर मैनेजिंग टीम भी हो गया, पीएमटी जिसे हम कहते हैं। पीएमटी. सो ऐसे सब जॉब्स भी आते हैं। एट द सेम टाइम कुछ रिसर्च के लिए जॉब्स भी आते हैं, बिकॉज देयर आर सम पीपल इवन इन माय क्लास हु आर मोर टुवर्ड्स फार्मा ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड, जिनको सेकंड ईयर प्रोजेक्ट पे बहुत जान लगा देते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उन्हें वो साइड में जाना होता है। इवन दैट ऑप्शन इज देयर, बट मोस्टली मैं कहूंगा मोटा मोटा तो एमबीए के जॉब्स आते हैं।
पर Okay. अदर देन दैट एलुमनाई मीट्स हमारे होते हैं, उसमें मैं एलुमनाई से बात करता हूँ। अ लॉट ऑफ देम हैव डाइवर्ज इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। बहुत सारे फार्मा में है, कुछ तो एफएमसीजी में चले गए, इवन आईटी में गए हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च और फार्मा के इसमें भी बहुत है, कंसल्टेंसी तक में गए हैं, एंड दे आर एट अ हाँ गुड हाँ हाँ पोजीशन, मैनेजरियल रोल्स, इवन हायर करेक्ट। पोस्ट। So it's open to you in what direction or what interest you आपका develop in इंटरेस्ट करेंटली किस पे है, या MBA. स्टिल I'm a total एमबीए? MBA अच्छा, guy. फिक्स Yes, है। एमबीए में क्या सोचा आपने, मार्केट रिसर्च, बीडी, पीएमटी, कोई बिल्कुल। स्पेसिफिक रोल या ओपन तो टू मेरा ऑल? एंड गोल रहेगा कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाऊँ, या तो पीएमटी ऑल्सो वर्क्स, एंड स्टार्ट अगर सेल्स से करने पड़े तो भी कोई गिला शिकवा नहीं, बट आई यू आर डेफिनेटली ओपन आई नो आई आ गेट जाए, देयर। डेफिनेटली, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज, आई हैव माय कलीग्स इन लुपिन वगैरह, जहाँ पे यस दे यस। आर इंटरनेशनल ट्रिप्स एज पीएमटी, दे आर गेट टू पूरा वर्ल्ड घूमने मिल रहा है, दे जस्ट वेंट हाँ टू जी। हांगकांग, सो और इट्स बेस्ट थिंग अबाउट द दिस कोर्स एंड दिस कॉलेज इज यू गेट टू मेक अ गुड नेटवर्क्स। लाइक हमारा जब एलुमनाई मीट हुआ था, तो इवन सिंपल गेम्स में हमें इंक्लूड किया था एलुमनाइज के साथ। आई वाज सिटिंग विद अ गाय हु इज अ सीनियर मैनेजर एट लुपिन, and we were sharing things, we were playing games together, so he got to know my name, he got my contact LinkedIn and all, we अच्छा shared अच्छा। such contacts ban jata। सो अनुराग, एक और सवाल, जब मैं इवन आई विजिटेड एनएमआईएमएस, द कांच की बिल्डिंग, द वेरी फेमस हाँ बिल्कुल। लिफ्ट, द वेरी फेमस कैफे डाउन देयर, द कांच की बिल्डिंग, थोड़ा उस वाइब, उस ऑरा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि कैसे वो एक इंसान को इंटिमिडेट या पॉजिटिवली ये करता है, खींचता है, कैप्टिवेट करता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल। सो वो एटमॉस्फेयर ही वैसा है कि व्हेन यू गो देयर यू आर टोटली कैप्टिवेटेड। एज एक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तो एक साइड पे रखते हैं, बट अगर आप पर्सनली वहां पे जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल स्टडिंग स्टूडेंट्स भी होता है। मैं एवरी डे बेसिस पे देखता हूँ। आई हैव अ नाइजीरियन फ्रेंड, आई हैव एन ऑस्ट्रेलियन ओके, फ्रेंड देयर। सो विद व्हेन यू टॉक टू ऑल दिस पीपल यू गेट टू नो अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपका एक क्या बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल पर्सपेक्टिव हो जाता है, माइंड पर्सपेक्टिव, से। हाँ एग्जैक्टली, अलग बन जाता है। आपको वर्ल्ड व्यू से चीजें देखने मिलती है। और अदर देन दैट, that building itself is too good. Such a good classroom, such high class level of facilities. Even Bloomberg Lab is there. If ओके, you people know finance यस का यस वो यस रहता है यस शॉप यस, वी वगैरह। हैव हर्ड, ऑफ कोर्स, ब्लूमबर्ग बहुत बड़ा, ये हमने हाँ, मार्केटिंग के लिए, but at the same फाइनेंस। time, when I'm being honest about this course, M.Pharm plus MBA, इसके सारे लेक्चर्स ग्लास बिल्डिंग में नहीं होते। हमारे सारे लेक्चर्स अच्छा मिठीबाई बिल्डिंग में ही होते हैं 3 साल। अच्छा। बट वी हैव ओके, एक्सेस टू every of the college, like the glass building Mukesh Patel. We go there on whenever we have free time also, if you want to use their facilities or the Bloomberg lab or any other library or any other canteen facility etc. So हमें ओपन है, हमारे बायोमेट्रिक रहता है, कार्ड टैप, सो अच्छा, उससे, हाँ, सो उससे so यू we कैन can एक्सेस। have access। Yes yes। अब सबसे दो आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, जो हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट भी पूछता है, कि हम्म। आखिर फीस कितनी है, और अगर फीस भर भी दी, सो एक एस्टिमेटेड या एवरेज सैलरी, मोस्टली बच्चों को लिंक्डइन पे तो पता चल ही जाता है, बट सिंस उनके स्टूडेंट्स से अगर आप थोड़ा सा बता सके कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं, और अगर है तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी पैकेज एंड व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर, अगर आप थोड़ा सा वो बता सके। Yes, totally. I'll tell you, fee structure per year same है, and 1 year का fee it is 3,80,000. ओके So it's a 3 years का course. ओके, Okay, so मोटा मोटी 12 के करीब कुछ है। 12 लाख, हाँ। करेक्ट, दैट्स एन एंड इन्वेस्टमेंट। ROI की अगर आप बात करें, तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट जाता है 10 का। बढ़िया, यस। मतलब कि आप 1-2 साल में कवर कर लोगे जो आपने इन्वेस्ट करा है, ऑलमोस्ट हाँ 2 साल के बट, अंदर तो। हाँ एट द सेम टाइम ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम्म, ऐसे भी बच्चे हैं जो 8 का भी लेके गए, ऐसे भी बच्चे हैं जो 17 का भी लेके गए। हाँ। It all depends on your caliber, how much you develop yourself in 3 years. आप आई क्या हैव skills वन ऑफ देते हो। माई फ्रेंड ओनली, तुम्हारे सीनियर के सीनियर होंगे, तो ही ओनली केम अप विथ 19 LPA फ्रॉम NMIMS, सो ऑफ कोर्स कांट नेम हिज नेम, कंपनी कुछ भी बोल नहीं सकते, बट हाँ, सो ऑफ कोर्स ये प्रूफ है, ये एविडेंस है, एंड आई Yes. होप 1 साल बाद, 2 साल बाद मुझे ये न्यूज अनुराग से भी सुनने मिलेगी, बिकॉज आई हैव सीन हिम ड्यूरिंग माई बैचलर्स, ही इज माई जूनियर, बाय द वे, मैं ऑडियंस को बता दूं, सो आई हैव सीन हिम कि बहुत अच्छा कैलिबर है उसमें, वेरी वेरी स्ट्राइविंग पर्सन, मतलब उससे अगर कोई चीज आप दे दो तो वो कर लेगा, नॉट जस्ट थियोरटिकल, प्रैक्टिकली भी, एंड आई हैव सीन वीडियो एडिटिंग वगैरह भी, अब तो तुमने सीख लिया, दैट्स वगैरह तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, मैंने देखे 2-3, सो हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है मेरा वैसे, कि
वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि मैंने देखा है आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है, तो आपके बहुत सारे हॉबीज वगैरह भी होंगे, तो हाउ डू यू मैनेज योर हॉबीज विथ योर हेक्टिक शेड्यूल? क्योंकि ऑब्वियसली 8 to 5:30 उसके बाद मे बी थक जाते होंगे, जो भी है, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कहते हैं? इस केस में स्टडी लाइफ बैलेंस कैसे होता है एग्जैक्टली। आपका? सो बैलेंस करने का एक ही सिंपल फंडा है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपको कितना अटेंशन और आपका कितना टाइम किस चीज पे देना है। लाइक मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा दिन का हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम गोज ऑन माय एमबीए साइड इन डेवलपिंग माय बिजनेस स्किल्स एंड ऑल। ओके। लाइक मैं जहाँ पे कम हूँ, लाइक मैं अगर सेल्स पोटेंशियल मेरे में कम है तो आई मेक श्योर कि मैं वहां पे कुछ कोर्स करूँ या वहां पे ध्यान दूँ। बट एट द सेम टाइम मेरा थोड़ा रिसर्च में कम पड़ता है, मेरा प्रैक्टिकल साइड में कम पड़ता है। थोड़ा चलो मार्क्स कम आ जाएगा प्रैक्टिकल में, हाँ। बट तो ऐसे करके मैनेज कर देता हूँ। तो फिर थोड़ा टाइम बचता है, फिर कहीं घूमने चले गए, किसी इवेंट में चले गए। अभी थोड़ा थोड़ा शौक, जैसे आपने कहा वीडियो का, हाँ। सेम। एक इवेंट में तो मैंने भी इसको टीवी में देखा था। आई फॉरगॉट दैट, क्या था वो? एंटरप्रेन्योरशिप का ही कुछ आइडिया तो था। बस, हाँ, आइडिया बस। आइडिया बाज, बिल्कुल आइडिया बाज में मैंने खुद इसको एक बार देखा था। मैंने दोबारा रिवाइंड करके देखा वो, कि यार ये तो अनुराग ही है। सो ऑफ कोर्स दैट इज गुड, यू हैव प्रायोरिटाइज्ड कि आपका क्लियर है कि भैया आपको एमबीए साइड पे थोड़ी ज्यादा स्किल्स, यू आर मोर लीन्ड टुवर्ड्स दैट, सो देयर इज यस। नो हार्म, देयर इज नथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली। When सो you are at अनुराग, when you are at yeah, postgraduate level, is this is the high time that you need to be clear about your focus, आपको क्या हम्म करना है। कि आपको जाना कहाँ है एग्जैक्टली, ये तो आपको पता होना है। और अच्छी बात है यार, 2 डिग्री एक साथ 3 साल में आ रही है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, राइट? इट्स एडिंग अ फेदर टू योर कैप, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। सो वंस अगेन, अच्छा, बिफोर वी एंड, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स, ट्रिक्स, सजेशंस फॉर क्रैकिंग द एग्जाम फर्स्टली, और सेकेंडली अगर कुछ मोटिवेशनल आप बोलना चाहे कि वो क्यों एनएमआईएमएस में फ्रॉम एमबीए करे, सो व्हाट वुड बी दोज वर्ड्स, व्हाट वुड बी दोज गोल्डन सक्सेस मंत्र फ्रॉम योर साइड? ओके, सो इफ यू फर्स्ट आस्क फॉर टिप्स ऑफ द एग्जाम्स, या। टिप्स में यही दूंगा कि आप 2 to 3 months पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट देन आपको वो शिद्दत से पढ़ना है। यू हैव टू, ऐसे मत लो कि यार किसी एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे रहे हैं, हमारे पास बहुत अलग ऑप्शंस है। नहीं, टैकल इट लाइक यू टैकल जीपैट। हाउ डू यू टैकल जीपैट? आप 2 साल 1 साल तो तैयारी करते हो ना उसकी, तो हम्म उतना ही दिस एग्जाम ऑल्सो रिक्वायर्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। आप सबको पता है मुंबई है, कॉम्पिटिशन है। सो अगर आप शिद्दत से ट्राई करोगे, फोकस रहोगे, तो देन इट्स इजी टू गेट इनटू एनएमआईएमएस। इट्स नॉट टफ एंड इट्स गुड। अदर देन दैट, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, यू हैव टू डिसाइड यू हैव टू डिसाइड एट दिस पॉइंट कि आपको 3 साल बाद आपको कितने का चेक चाहिए। सिंपल, सिंपल इनफ। करेक्ट। If you want that 2 to 3 extra zeros, 1 to 2 extra zeros, you have to work hard right now. It's the time. ये नहीं कि कल मेहनत करोगे तो कल चेक मिलेगा, आज मेहनत करोगे तो कल चेक मिलेगा। परफेक्ट, मतलब मंथली अगर 6 फिगर्स की सैलरी चाहिए और सालाना 7 फिगर्स की, तो अभी से मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। Absolutely. So, Anurag, really, I'm really grateful and thankful to you that you gave out time, you shell out lot of knowledge, gave us lot of insights and glimpses about the NMIMS MPharm plus MBA integrated course. डेफिनेटली हमारी ऑडियंस, एस्पायरेंट्स को जो भी क्वेरीज होगी, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, दे कैन कनेक्ट टू अनुराग ऑन हिज लिंक्डइन, Definitely, एंड definitely. आई होप ही आंसर्स। और कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं जो भी क्वेरीज है स्टूडेंट्स को, whenever he gets time he will address it surely. And once again, thank you so much for joining this discussion, Anurag. Yes, and thank you, Payam, कि you called me here. Like all such videos are very much needed for the students when they go about searching of all these colleges. And special Right. thanks to you कि मैं देखता रहता हूँ तुम्हारे भी vlogging and all. हाँ, बहुत info मिलता है कहाँ के बारे में, नाइपर के बारे में सीखने मिलता है, all the other courses and the correct. teachings you are doing. So keep on doing it, yeah. Don't stop. Like many students like me, all watch it and see and get inspired, get the knowledge that is required to them in the pharmacy Thank field, you. especially जहाँ पे थोड़े कम YouTubers वगैरह हमें मिलता है. True, Keep right. doing it. Keep it on. Thank you so much. Really appreciate those golden words from your side. Have a great day. Have a great future ahead. Thank you. Thank you.